All right. So from today, we will first see theory of motion in 1D, motion in 2D, and then we'll do numericals on related to that. So, right. So we'll start with third topic, that is motion in 1D, and I would start from basics as usual. I would like to know how much do you know about motion in general. मोशन के बारे में क्या क्या पता है आपको, जैसे कि what I am saying is what do you mean by distance and what do you mean by displacement. Actual path length, shortest path. Basically, displacement is nothing but final position vector minus initial position vector. Good. तो ये important है, as you said already, displacement is shortest path, or you can say displacement is basically initial final position vector minus initial. मतलब basic what we can do is, for example, हमें मैंने पहले ही बताया था आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, बट यू डोंट नो डायरेक्शन, तो आप पहले ए से बी पे आए फिर बी से सी पे आए, तो अल्टीमेटली यू हैव रीच्ड A to C, which means that the path length or distance covered is AB plus BC in this case, whereas displacement is just AC. Right. Normally हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखते वक्त ऑफ कोर्स यू आप यहां से बता सकते हो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बता सकते हो, अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर. राइट. नॉर्मली व्हेन डूइंग न्यूमेरिकल्स ऑफ हायर लेवल हम क्या करने वाले हैं, हम नॉर्मली दो पॉइंट ले लेंगे ए बी, द पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, but the displacement will be measured with respect to some other origin. तो ये हमारे पास एक रेफरेंस सिस्टम है, हम इस रेफरेंस सिस्टम के ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं. पहले जब ए पे था पार्टिकल, उसका पोजीशन वेक्टर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है. तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दिस आर द टू थिंग्स दैट वी नो. राइट. देन लेट्स से दिस is R1 bar, or I will denote it by small a bar. Small a's are reserved for position vectors and small letters basically. So small b bar is position vector of b, है ना. तो पार्टिकल का क्या हुआ, पार्टिकल या जो ऑब्जेक्ट था वो a से b गया, where ab is displacement vector from a to b and b bar was position vector of b. So in this case, can you tell me what is the position, what is the displacement vector of the object from A to B? A से B डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, है ना. पार्टिकल A से B गया, B बार माइनस A बार, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो इन दिस केस कहां से आया, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आया, है ना. तो OA बार प्लस AB बार इक्वल टू OB बार, तो आपको मिलेगा OA बार प्लस AB बार equal to OB bar. So you will have AB bar, which is displacement from A to B, as OB minus OA, मतलब B bar minus A bar. How to remember? AB bar is B bar minus A bar. AB bar is B bar minus A bar. So this is displacement vector, right? So you should know this much about displacement. Then without wasting a lot of time, we will move to next topic, which is speed. Right. What do you mean by speed? जब भी मोशन होगा, मतलब पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, तो पर यूनिट टाइम में
हर एक सेकंड में कितना पोजीशन चेंज हुआ, पोजीशन बोलने से तो कितना डिस्टेंस कवर किया, हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल पर सेकंड, राइट। तो पाथ लेंथ पर सेकंड भी बोल सकते हो, डिपेंड्स। नॉर्मली स्पीड इज टोटल पाथ लेंथ, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम normally. You already know meter per second dimension, so I'll not get into that. But when you talk about velocity, you basically classify velocity in 4 different categories. उसमें से पहला है यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी के लिए भी सेम है, तो हम लोग स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड के लिए भी सेम है। So there are 4 different categories of speed, classified into 4 types. What is uniform speed? एक्सेलेरेशन की बात नहीं, वी हैव नॉट डिफाइंड एक्सेलेरेशन येट। देखो स्टार्ट कहां से होता है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड बेसिक, स्टार्ट कहां से हुआ। एक पार्टिकल मेरे पास ऑब्जेक्ट पड़ा था, नॉट मूविंग, नॉट मूविंग, वी कैन नॉट टॉक अबाउट मोशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, जब ऑब्जेक्ट ने मूव होना स्टार्ट हुआ तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे एक, if the particle covers equal distance in equal interval of time, that is uniform speed, है ना। तो पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक सेकंड में इक्वल इक्वल इक्वल, पहले सेकंड में 1 मीटर तो दूसरे सेकंड में भी 1 मीटर, तीसरे सेकंड में भी 1 मीटर, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। काम में आएगा, याद रखना बाद में। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? When a particle covers unequal distances in equal intervals of time, एक सेकंड में पहले 1 मीटर, फिर एक सेकंड में 5 मीटर, फिर एक सेकंड में 2 मीटर, so it is the particle or object is covering unequal distances in equal interval of time. Then you will have to define something called as average speed. What is V average? Total distance by total time. For example, अभी आप घर से निकले यहाँ तक आने के लिए, है ना। How much time did you take to reach here? 5 minutes. Approximately how far is your house in kilometers? Approximately, let's say 5 average. तो मैंने आपको पूछा कि आपका स्पीड क्या था, क्या करोगे? 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर डिवाइड बाय 20 मिनट्स, 20/60, बिकॉज इन आवर चाहिए या फिर इन सेकेंड्स चाहिए तो फिर और चेंज करोगे इसको। तो अगर आपको सेकेंड्स में चाहिए तो 20 × 60 करोगे, राइट। तो जो भी नंबर मिलेगा आप बोलोगे दिस मच वाज माय स्पीड, राइट। बट डिड यू बॉदर अबाउट कि रास्ते में कहीं रुके थे, कहीं सिग्नल लगा होगा, कहीं गाड़ी स्लो करना पड़ा होगा, कहीं फास्ट करना पड़ा होगा। तो व्हेन यू टॉक अबाउट एवरेज स्पीड, इट इज जस्ट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, देयर इज एवरेज, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एस या डेल्टा एक्स, आपके ऊपर है, अपॉन डेल्टा टी। एस बेसिकली मतलब डिस्प्लेसमेंट इन जनरल कैन बी 3D ऑल्सो, और एक्स बोलूंगा तो स्पेसिफिकली इन एक्स डायरेक्शन है इसलिए। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, दिस इज एवरेज डिनोटेड बाय दिस पर्टिकुलर सिंबल। देन एवरेज मतलब क्या होता है, पहले आप ये बताओ। एवरेज मतलब आप टोटल की जब बात कर रहे हो, है ना, तो मोशन के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की आप बात कर रहे हो, तो फिर नॉन यूनिफॉर्म की कैसे बात होगी? बिकॉज यू से टोटल मोशन के स्टार्ट और खत्म होने तक, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? जब मोशन में है ऑब्जेक्ट, करेक्ट, ओके। बट देन व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जैसे अभी घर से यहाँ तक आते आते बीच में कहीं पे आपने स्पीडोमीटर को देख लिया, वो बता रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, सो दैट इज द स्पीड एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। आई वॉन्टेड टू गो फ्रॉम सिटी ए
to city B, right? Let's say मुझे A से B में जाने के लिए लगा 60 minutes and I want to know exactly what was my speed at 26th minute. मुझे पता करना है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक टाइम इंटरवल लूंगा, लेट अस से 25 27, मतलब मैं एक डेल्टा टी डिफाइन कर रहा हूं। पहले उस डेल्टा टी में मैंने कुछ डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर किया था, डेल्टा टी में डेल्टा एक्स, पर मुझे, और वी इंस्टेंटेनियस को सिर्फ वी से नोट करते हैं बाय द वे, तो इन जनरल जब हम बोलते हैं स्पीड तो हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। हियर ऑनवर्ड जब भी मैंने बोला स्पीड ऑफ द पार्टिकल मतलब एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरेज वैल्यूज। तो एज यू रिमेंबर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी ये नोटेशन था एवरेज का, बट व्हाट वाज माय टास्क, मुझे एक टाइम इंटरवल में नहीं, मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड चाहिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब मैं क्या करूंगा, टाइम इंटरवल को छोटा कर दूंगा, 25 27 था, अब 25.5 26.5, तो धीरे धीरे मैं दोनों साइड से 26 मिनट पे पहुंच रहा हूं, एंड दैट इज व्हाट इट मींस बाय टेकिंग लिमिट। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। डिनोट कैसे करते हो, डी एक्स बाई डी टी, राइट, गुड। तो ये सारा का सारा, if I add just a direction to it, it becomes velocity. So for defining velocity, what you say is displacement upon time. यहाँ पे टोटल वर्ड यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वैसे भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में देखा जाता है, तो व्हाई शुड आई बी टेक सेइंग टोटल, एक ही वेक्टर है वो, राइट। इसमें भी आप एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिफाइन करोगे। व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिस्टेंस बोल दिया मतलब यू टॉकिंग अबाउट स्केलर, इजंट इट? डिस्टेंस बोला तो स्केलर बन गया ना। व्हेन द पार्टिकल कवर्स यस, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, when a particle covers equal distance in equal intervals time in a given direction, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, that is uniform velocity. What is non-uniform velocity? Unequal distances. So you can say when a particle covers unequal distances in equal interval of time in a given direction, or when a particle covers equal distances in equal interval of time but in different directions, then non-uniform velocity. मैं क्यों बता रहा हूँ डिटेल में, मुझे बताओ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म होता है? नॉन। स्पीड क्या होता है, सेम, मतलब क्या, यूनिफॉर्म होता है। तो इन यूसीएम speed is uniform because speed is constant, but velocity, since it is tangent at every point, that is non-uniform. इस पे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे बेसिक्स, राइट। देन ऑफ कोर्स व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ओके। तो v average bar is simply dx bar by dt. What is instantaneous velocity? Velocity at a given instant of time. So you just say v bar equal to limit as delta t tends to 0 dx bar by dt, right? Good. Let's move ahead with more theory. Up. There are some special cases that I skipped, but I'll do it now. Okay. हमारे पास एक ऐसा केस है, I will just okay.
हमारे पास एक ऐसा केस है, सपोज हमको ए से बी तक जाना था एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड्स हियर नाउ. नॉर्मली ये मैं न्यूमेरिकल्स के टाइम लेता हूँ, बट इट्स ओके दैट आई टेक इट नाउ. मुझे ए से बी पे जाना है. मैंने पहले हाफ टाइम में अच्छे से सुन लेना, मेरा स्पीड v1 था और हाफ टाइम में मेरा स्पीड v2 था. व्हाट इज एवरेज स्पीड इन दिस केस? हाँ, बोलो बोलो. नहीं, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ. v1 प्लस v2 बाई 2, करेक्ट. पहले हाफ टाइम इंटरवल में स्पीड v1 था, दूसरे हाफ टाइम इंटरवल में स्पीड v2 था. नाउ इफ आई से, तो यहाँ पे you will have to make a note of it when where v1 is speed in first half of time and v2 is speed in next half of time. ऑफ टाइम लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑफ डिस्टेंस अब देखेंगे हम लोग. सो नाउ लेट्स से कि हमारे पास सिचुएशन ऐसा है दैट पहले हाफ डिस्टेंस में स्पीड v1 था और अगले हाफ डिस्टेंस में स्पीड v2 था. व्हाट इज v एवरेज इन दिस केस? Yes. What is average speed in this case? By 4. If you say by 4, I will want to know how did you come to that by 4? I would like to know how do you arrive at that exactly by 4 ka condition. By the way, it is wrong. Yes. To v1 v2 by v1 plus v2. So when you are moving in one half of time with speed v1 and other half of time with speed v2, average is v1 plus v2 by 2. But when you are moving in one half of distance, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा थोड़ा सा change, and the change will be, ये टाइम हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, and write distance, right? तो ये distance कैसे आया, मतलब velocity average का equation कैसे आया, that you have to think. कैसे आएगा बताओ. What is average speed by the way? Total distance by total time. मैं मान लेता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि पहले डिस्टेंस d1 कवर किया, फिर d2 कवर किया एंड सो ऑन. पहले डिस्टेंस d1 इन टाइम t1 कवर हुआ, फिर टाइम t2 लगा d2 के लिए, फिर t3 के लिए d3 के लिए t3 टाइम लगा है, राइट. v एवरेज d1 plus d2. What is time in terms of distance and velocity? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ what is time in terms of distance and velocity. What is speed? Distance upon time, right? What is time? Distance upon, हाँ, तो distance by speed. हम ये देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन हमने लिखा है v एवरेज का, ये कैसे आया. फिर अगर मैंने बोला आपको कि पहले x by 3 में स्पीड v1 था, फिर x by 3 में स्पीड v2 था, फिर x by 3 में स्पीड v3 था, तो मैं बोल रहा हूँ पहले 1/3 डिस्टेंस में स्पीड v1 था. मैं टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ. होता है ना, पहले हाफ आवर तक
10 किलोमीटर पर आवर पे चले, फिर अगले हाफ आवर तक 30 पे चले, या ऐसे बोल सकते हो पहले 20 किलोमीटर तक हम लोग 10 किलोमीटर पर आवर पे चले और फिर अगले 20 मिनट्स तक हम लोग 20 किलोमीटर तक हम लोग V2 स्पीड पे गए. तो सिंपल थिंग. What I told you here was where V1 is speed in first half of distance. मतलब D1 और D2 दोनों D by total distance by 2 है, बराबर. तो V एवरेज क्या आएगा आपका D by 2 प्लस D by 2, मतलब ऊपर तो टोटल डिस्टेंस ही आने वाला है, मतलब ऊपर तो आपका D ही आने वाला है, अपॉन D by 2V1 प्लस D by 2V2, डी कॉमन निकल के कैंसल, तो 1 अपॉन 1 by V1 प्लस 1 by V2. इसको क्रॉस मल्टीप्लायर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट this particular equation, right? So this is how you have to solve this particular thing. तो 3 आ जाएगा बस, राइट? तो उसका इक्वेशन बनता है आपका 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3 ऑल कॉम्बिनेशंस, है ना? 3 v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v3 v1 v3, राइट? तो दिस इज व्हाट you must know. अगला, next thing that we need is acceleration. What do you mean by acceleration? पहले पार्टिकल रेस्ट पे था, फिर पार्टिकल मूव होना स्टार्ट हुआ, मतलब हमको ये क्वेश्चन है मूव तो हो रहा है, हर एक सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कि नहीं. फिर हमने स्पीड डिफाइन कर दिया यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, राइट? फिर पता लगा कि अरे ये तो हर एक सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा, ज्यादा कर रहा है, हा? पहले एक सेकंड में 1 मीटर, फिर एक सेकंड में 3 मीटर, फिर एक सेकंड में 4 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन. So how do you define acceleration? Change rate of change of velocity. So in this case also you will have uniform acceleration. What is uniform acceleration? When the velocity of the particle changes by equal amount in equal interval of time, then the particle is said to have uniform acceleration. Non-uniform? Exactly, if the particle is changing its velocity unequally in equal interval of time, or the particle is changing its direction, then velocity is changing direction, then the particle is said to be in non-uniform acceleration. Then what is average? Average delta v bar by delta t. मतलब आप यहाँ पे वापस से स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट देखते हो, दैट इज डेल्टा v, राइट? इंस्टेंटेनियस में आप व्हाट इज द एक्सेलेरेशन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम देखते हो, and you denote it by just a bar and limit of delta v bar by delta t as delta t tends to 0. देखो मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड और स्टेप्स को स्किप कर रहा हूँ अंडर अजम्पशन कि आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता है. नॉर्मली ये 11th की बैच के लिए बहुत इन डिटेल होता है, हर एक चीज धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं, बट बिकॉज आई कैन जज यू, यू ऑलरेडी नो. तो कहीं पे भी लगे that there is something that you don't understand, please ask. Very simple, right? तो इतना पता होना चाहिए. अब इतना पता है तो what is important from the perspective of competitive exams like NEET is you'll have to fetch physics from graph. ग्राफ में से तुमको इंफॉर्मेशन, फिजिकल इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा. तो we'll have to represent graph
in terms of, like, you have to represent motion in terms of graph. तो graphical representation of motion देख लेते हैं आप. So it is important. सबसे पहले I would like to know, अगर मेरे पास एक ग्राफ है, जनरल ग्राफ है, any graph, let us say x and y, any graph, and I'll take a line, I'll take any line, ऐसा एक line है. Good. Then how do you find out slope of this line? Slope of the line, tan theta. What is theta? Angle made by the curve with respect to horizontal, right? क्योंकि x axis y axis मेरे ऊपर है ना, मैं रोटेट कर दूंगा x y को, right? Okay. So by the way, अगर ये वैल्यूज हमको पता है, this is y2, this is y1 over here, this is x1, this is x2, तो ये जो इतना डिस्टेंस है that is x2 minus x1, और ये जो डिस्टेंस है that is y2 minus y1, तो आप बोलते हो slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1, but this is opposite side upon adjacent side for theta, hence it turns out to be tan theta, right? एक चीज जो आपको नहीं पता होती मोस्टली, पता नहीं आपको पता है या नहीं, विल सी, that is really important to fetch out physics. What is slope of a line parallel to x axis, मतलब horizontal, angle 0? What is tan of 0? Tan of 0? 0. So any line which is parallel to x axis has 0 slope, है ना? मतलब ये जो है अब 0 slope है, इसको समझना कैसे वो भी देख लो. I'll just compare that with this particular thing. अब ये जो particular red line है, इसने angle theta बनाया है. This theta is acute, right? What is tan of acute angle? Positive और negative? Positive. मतलब ये जो line है, इसको बोलते हैं up the hill. Slope is positive, right? तो लेफ्ट से राइट अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, then slope is positive, right? Okay. What is slope of this line? Infinity, not defined, या फिर आप बोल सकते हो 1/0, है ना? Not defined. What is slope of this line? Negative. So if the angle is obtuse with respect to horizontal, slope is negative. Good. तो अब अगर इतना हमको पता है, तो we actually can fetch a lot of information from graph. So what I am going to do is I am going to draw position time graph of various objects, and we'll see what information do we get from it. So I have position along y-axis. ये by default है, हम लोग position हमेशा along y-axis लेते हैं by default. तो मैं यहाँ x लिखता हूँ. अगर motion x डायरेक्शन में है तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ पे पोजीशन ही लिख देते हैं, क्योंकि पोजीशन अगर लिखा तो फिर डिस्प्लेसमेंट का भी इंफॉर्मेशन मिल सकता है. सिर्फ एक्स वाई लिखा तो फिर वो डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन हो गया. टाइम. टेल मी हाउ विल द ग्राफ ऑफ, या फिर आई विल आस्क यू बेटर, व्हाट डज दिस मीन फिजिकली? this is your graph, if I am not wrong. आप बता दोगे मुझे अभी.
नहीं, मैं लिख रहा हूं, आप बताओ। This is your graph. What does this graph mean? Particle at rest. You will be sitting here for 2 hours, right? So when a particle is not moving with respect to time, then its graph is parallel to time axis. Correct. So you can write a lot of things. So you can say theta 0 था इसलिए v 0 था. Okay, you can say line parallel to time axis means particle at rest. Line parallel to time axis means particle at rest. Good. And okay, again I will take position 0 and time, and I will say, what does this mean? Half correct, almost there. एक ही टाइम पे आप यहाँ क्लास में बैठे हो, उसी टाइम पे आप घर पे हो, उसी टाइम पे आप पता नहीं कहीं हो, I don't know. So it means that at the same instant of time, particle has different positions, which means velocity is infinite. You can same time pe position is changing, right? So if you talk in terms of physics, you say theta is 90, you say v is infinity, and you say practically impossible case. You cannot be at different positions at the same instant of time, right? Okay. What does this mean? वो ठीक है, ओरिजिन तो मैं कहीं भी सेट कर सकता हूँ, मुझे जरूरी नहीं ओरिजिन, मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, डजंट मैटर. हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड, इसका मतलब ये है if theta is constant, which means v, what can you say about v? यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी कैसे पता लगेगा? देखो, 1 सेकेंड में 1 मीटर, फिर 1 सेकेंड में और 1 मीटर, है ना, 1 2 1 2. So a straight line passing through origin with constant angle means, because straight line बोले तो एंगल कांस्टेंट ही होगा, means यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब a is 0, क्योंकि कांस्टेंट v कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, मतलब एक्सेलरेशन इज 0. So good. So a straight line with constant slope represents velocity is constant and acceleration is 0. I'm not going into much details because बाकी तो ये आपके पास मॉड्यूल्स में मिल जाएगा आपको. I just want you to understand how to fetch information of a given motion from graphs. Okay, let's draw your graph. जब आप घर पे जाओगे यहाँ से तब. What does this mean? Increasing speed, क्योंकि angle is increasing. So इसका मतलब what you can say, theta is increasing, मतलब speed is increasing, मतलब acceleration is
positive, right? Okay, good. Then what will this mean? Decreasing speed, right? Decreasing speed, since angle is decreasing, so theta decreasing. अभी तो सिर्फ मैं ग्राफ बोल कर रहा हूं, मैं बोलूंगा टेल मी द इक्वेशन ऑफ दिस, व्हाट डज इट लुक्स लाइक, पैराबोला। तो इक्वेशन बताओ। मैं इसलिए बेसिक से जा रहा हूं क्योंकि मैं इसका इक्वेशन पूछूंगा आगे जाके। थीटा इज डिक्रीजिंग विच मीन्स वी इज डिक्रीजिंग, मतलब एक्सेलेरेशन नेगेटिव, मतलब गाड़ी को ब्रेक मारना पड़ गया, सिंपल लैंग्वेज में। वेरी गुड। Because it's all about mathematics, you need to know equations of different curves, and that gives you a lot of physical information about the system. अभी इसका मतलब बताओ, what does that mean? नेगेटिव में गया, अब बताओ। नेगेटिव तो नहीं हो, मतलब क्या? रेस्ट में आ रहा है, डीएक्सेलरेशन है, डीएक्सेलरेशन है, इट्स नॉट डीएक्सेलरेशन, सो व्हाट इट इज? थीटा कांस्टेंट मतलब डीएक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन तो नहीं हो सकता, थीटा कांस्टेंट है ना, isn't it? थीटा कांस्टेंट है, what does this mean? So theta constant, exactly, v negative, slope negative, acceleration negative नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड है। थीटा कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब क्या? पार्टिकल इज रिटर्निंग टू, मैं बता देता हूं। अब ये तुम्हारा ग्राफ है ये, राइट? इसको जीरो को मैं बोल देता हूँ 7 PM इन टाइम, राइट? या फिर 9 PM इन टाइम, बेटर। आज के दिन 9 बजे ये तुम्हारा घर होगा यहाँ पे कहीं, तो इन टर्म्स ऑफ पोजिशन, राइट? तो तुम क्या करोगे? पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स इट्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नॉर्मली तुम दिन भर में मैक्सिमम टाइम कहाँ होते हो? तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? हर चीज कहाँ से मेजर करते हो? घर। तो क्या इसका मतलब क्या होता है? थीटा कांस्टेंट वेलोसिटी नेगेटिव, बट द ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज गोइंग बैक टू इट्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ओरिजिन की तरफ वापस जा रहा है वो, राइट? सो यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है, डीएक्सेलरेशन भी नहीं है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, बोल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन फेच इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस। तो आई नॉट राइट मच क्योंकि ये सब आपको एनी स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएगा। माई जॉब इज टू जस्ट गिव यू सम बेसिक आइडिया अबाउट ग्राफ्स। नॉर्मली मैं मोशन इन 1D के क्वेश्चंस ग्राफ से सॉल्व करवाता हूँ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अगर इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है तो वी विल ड्रॉ ग्राफ एंड विल सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड नॉट डू एनी काइंड ऑफ इक्वेशन स्टफ। इसका मतलब क्या होता है? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म कहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है? बराबर है नॉन यूनिफॉर्म, तुम सही बोल रहे हो, वो गलत नहीं है, सही है, बट थोड़ा सा पार्ट मिसिंग था तुम्हारे इंफॉर्मेशन में। यू आर राइट। सो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट स्लोप्स, 3 लाइन है अलग अलग स्लोप की, मींस व्हाट? That the velocity of the body changes after certain interval of time.
है ना, मतलब 0 से A तक एक स्पीड, A से B तक दूसरा स्पीड, B से C तक तीसरा. Case of non-uniform, but the variation, the change in velocity is after certain interval of time. Continuous change नहीं हो रहा, ये continuous change था यहाँ पे, ये continuous change नहीं है. So, अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये इस साल या लास्ट ईयर के ही क्वेश्चन में है, एग्जाम में है, नीट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इसे 4 ऑप्शन दिए थे और पूछा था विच ग्राफ कैनॉट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल. दिस ग्राफ कैनॉट रिप्रेजेंट मोशन ऑफ अ पार्टिकल. प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस है ये, बट क्यों? आई एम लिसनिंग. क्योंकि ये सही ऑप्शन था उसका. प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्यों? वेलोसिटी की बात ही नहीं, पोजीशन टाइम ग्राफ है. वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है, करेक्ट मिल सकती है, स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं. अब बताओ, ये अभी का टाइम है. लुक हियर एंड लुक हियर. दो पोजीशंस है. So this means a particle has two different positions at same instant of time. तो यहाँ पे भी वही मतलब है. यहाँ तो मतलब ये है कि टाइम आगे बढ़ ही नहीं रहा, पोजीशन चेंज होती जा रही है, राइट? इसका मतलब है इन्फिनिट स्पीड, इसका मतलब इन्फिनिट स्पीड नहीं है, बट स्टिल पार्टिकल हैज टू डिफरेंट पोजीशंस एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम. ये तो अभी रिसेंट क्वेश्चन है ये. आई डोंट नो इफ दिस ईयर और लास्ट ईयर, बट इट वाज देयर. तो अभी एक लास्ट ग्राफ देख लेते हैं, विच इज गुड important graph. Time axis, position axis. What does this mean? स्पीड की बात नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट पोजीशन. स्टार्टिंग कर रहा है और उसी पोजीशन पे वेट, इसका क्या मतलब था? नेगेटिव स्लोप. क्या मतलब था? पार्टिकल रिटर्निंग टू ओरिजिन, पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर. अब बताओ. पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे यहाँ पर अलग टाइम नहीं, when you come to class, पोजीशन से मतलब think. इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल. नहीं, थिंक. मुझे सिर्फ बहुत बेसिक चीजें चाहिए. आई डोंट वांट बहुत ज्यादा पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ये वो. मुझे ये समझना है कि फिजिकली, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिकली क्या मतलब है. आई गिव यू सिंपल एग्जांपल. लिसन वेरी सिंपल. आप क्लास पे आते हो, व्हाट इज मैंडेटरी फॉर यू टू ब्रिंग? फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आते वक्त हमेशा नोटबुक चाहिए, करेक्ट. घर से निकले, एक पॉइंट तक पहुंचे, फिर याद आया बुक भूल गए, करेक्ट. और जहां तुम्हें याद आया कि बुक भूल गए, वो तुम्हारा समझ लो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया मोशन का. तुम्हारा घर क्या था? रेफरेंस, करेक्ट. मतलब तुम उस स्टार्टिंग पॉइंट से पॉइंट ऑफ रेफरेंस के जा रहे हो, यू आर रिटर्निंग टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड देन गोइंग अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगेन. तो पार्टिकल रिटर्निंग to its origin point of reference and then again going away.
when it is returning it is deaccelerating, negative acceleration, and then it is accelerating again. ये मतलब होता है उसका, राइट? तो सिंपल सिंपल चीज है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, यू जस्ट हैव टू थिंक। हमको हरी कहाँ करनी है वो समझेगा, तो स्ट्रेस टेस्ट आएगा आपका 15 मिनट 15 क्वेश्चन सॉल्व करो ऑलरेडी विदाउट पेन एंड पेपर, यू आर नॉट अलाउड टू राइट डाउन इवन कैलकुलेशंस। तो वो आएगा, वहां पे जितना करना है कर लेना, अभी सोचने का टाइम है। नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जैसे हमने पहले एक बेसिक ग्राफ ड्रॉ किया था ये, अब मैं इसी ग्राफ को वहां कॉपी करता हूं, इसके सिर्फ मैं नाम चेंज कर दूंगा एक्सिस के, एंड मेक इट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो ये आ गया वेलोसिटी, ये आ गया टाइम। आई वांट टू नो व्हाट इंफॉर्मेशन कैन यू गेट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Yes, what information do you get? For example, this is T1, this is T2, this is V1, this is V2. What can you get from the slope of this graph? Speed the plot किया हुआ है, acceleration. So acceleration, so A is tan of theta is equal to, of course, ये V2 minus V1 upon T2 minus T1, राइट? तो मैंने उल्टा लिखना चाहिए था, पहले V2 minus V1 upon T2 minus T1 लिख देंगे, V2 minus V1 upon T2 minus T1, that is tan theta. Okay, so you can get acceleration. Position time से क्या मिला? Velocity. Velocity time से क्या मिला? Yes, but there is one more thing that you can find from this graph. One more physical parameter that you can find. Actually, two more. और two more कैसे बताऊंगा मैं? देखो, सिंपल, मैं अगर पोजीशन इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करता हूँ, पोजीशन मतलब मीटर, टाइम मतलब सेकंड। मीटर सेकंड ऐसा कोई फिजिकल वैल्यू पता है क्या हमको? नहीं, मतलब वी कैन जस्ट फाइंड वेलोसिटी बाय स्लोप, मतलब पोजीशन बाय टाइम से मिलेगा, पोजीशन बाय टाइम इज वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी बाय टाइम से एक्सेलरेशन मिला, वेलोसिटी इनटू टाइम इज वेलोसिटी इनटू टाइम या डिस्टेंस इनटू टाइम, सॉरी स्पीड इनटू टाइम। मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड क्या देता है हमको? मीटर, मतलब क्या देता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, दैट इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको दो इंफॉर्मेशन मिलती है, कौन सी दो? एक्सेलरेशन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, करेक्ट? तो डिस्प्लेसमेंट कब, डिस्टेंस कब, वो भी बताता हूं आपको। लेट्स से हमारे पास एक पार्टिकल था जिसने ऐसा उसका ग्राफ है, ओके? सो द पार्टिकल was changing its velocity according to the given graph here. So this is velocity, this is time, correct? तो ये एरिया A1, ये एरिया A2, ये एरिया A3। अगर मुझे देखना है व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, मैंने इसलिए बोला था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बहुत बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट वाज डिस्टेंस? टोटल पाथ लेंथ, है ना? डिस्प्लेसमेंट वाज
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। वेरी गुड। अब हमारे पास ये तीन एरियाज बन गए, तीन ट्राइंगल बन गए। सो दिस इज मोशन ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डेफिनेटली यू नो ये नेगेटिव वैल्यू वेलोसिटी है, ये पता है, ये पॉजिटिव वैल्यू वेलोसिटी है, ये पता है। मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं एरिया A1 A2 A3 को निकालूंगा और उनको सिर्फ ऐड कर दूंगा। अगर A2 नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव भी यूज करूंगा उसमें, दैट विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट। मुझे अगर डिस्टेंस चाहिए तो मैं मॉड्यूलस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेने वाला हूं, जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज लेने वाला हूं इफ आई वांट टू फाइंड आउट डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस इज टोटल पाथ। तो भले ही वेलोसिटी नेगेटिव हुआ, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब तो ये भी होता है ना कि हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, बट डिस्टेंस ट्रैवल नेगेटिव नहीं हुआ। वो कभी सुना है क्या? द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ पार्टिकल इज -10, डिस्प्लेसमेंट कैन बी -10, मतलब पार्टिकल ओरिजिन से पीछे आया है या फिर नीचे गया है इफ द मोशन इज इन वाई डायरेक्शन। क्लियर है यहाँ तक? गुड। तो याद रखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको दो इंफॉर्मेशन मिलती है, एक एक्सेलरेशन फ्रॉम स्लोप, एक एरिया अंडर द कर्व दैट कैन गिव यू टू डिफरेंट आउटकम्स, वन डिस्टेंस, अदर डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ से इंफॉर्मेशन फेच की, वैसे ही हम लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, मैं यहीं पे बता दूंगा। Instead of position, if I write down velocity, what will that mean? Paragraph. Acceleration 0, velocity is constant. Very good. दूसरा ग्राफ, infinite acceleration, मतलब एक ही point of time पे there are many velocities with which a particle is moving. Practically impossible. ये zero acceleration, velocity is constant, zero acceleration है, यही तो कंफ्यूजन होता है। This is zero acceleration because velocity is constant. Uniform acceleration. Particle is changing its velocity in equal intervals of time equally. A is constant. Okay, इसका मतलब क्या होता है? Positive acceleration, velocity is increasing with time. इसका मतलब क्या होता है? Retardation. Yes, correct. So these are few graphs that very important. बाकी हम देखेंगे as and when required. So we don't want to waste a lot of time. Next thing is we need to know what are equations of motion. So do you remember equations of motion? Of course, I would want to know in scalar and in vector form. V is equal to U plus AT plus T. दूसरा plus half AT square S bar equal to U bar dot T bar, right? हाँ, तो U bar dot T dot, you cannot take a dot product of a vector and a scalar. U bar T plus 1/2 A bar T square. Then ठीक है, V bar dot V bar equal to U bar dot U bar plus 2 A bar dot S bar, right? Provided A bar and S bar are in the same direction, क्योंकि AS cos theta. So okay, then चौथा
देयर आर 5. Distance traveled by a particle in a given nth second. जैसे पार्टिकल 0 से 10 सेकंड तक मूव हो रहा है, मैंने बोला व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6th सेकंड. Sn इक्वल टू क्या करते हो, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 बराबर s इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1. Before I tell you the vector form of this, there is something wrong here, no, isn't it? ये मीटर है, ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो डायमेंशन तो इनकरेक्ट है. तो टी, हाँ बराबर बोल रहे हो ना, टी क्या, यू आर सेइंग करेक्ट. यहाँ पे टी है लेकिन उसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन सेकेंड, एक सेकेंड, फिफ्थ हो या सिक्स्थ हो या 10th हो, राइट. तो यहाँ पे वो सेकेंड सेकेंड होगा, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर है, तो दैट इज अ करेक्ट इक्वेशन. वेक्टर फॉर्म s bar equal to u bar plus a bar by 2 2n minus 1. There is one more. There is one more. S is equal to u plus v by 2 into t. S bar equal to u bar plus v bar by 2 into t. सिर्फ ये यूज कब करते हैं वो पता होना चाहिए. When do you use s equal to u plus v by 2 into t? नहीं, something to do with u and v. ठीक है, what I'll do is I'll take one example related to this and then you will know कि कहाँ यूज करना है उसको. नॉर्मली पहले 3 4 में काम हो जाता है, वैसे वो दूसरा और पांचवा दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो आप. So it's easy thing. We'll see how and when to use it. Okay, then क्या रह गया, क्या रह गया, motion under gravity free fall. So motion under gravity, and that is free fall, right? So we want to see what is motion under gravity free fall. क्या मतलब होता है? What do you mean by this? What do you mean by free fall? फ्री फॉल का क्या मतलब होता है, मुझे मतलब बताओ फ्री फॉल का. Is it a free fall? No, why? Why? Acceleration less than. Simple language. What is free fall? मैं 1 किलोमीटर ऊपर जाके एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूँ, एक 10 टन का हाथी ले लिया और एक बोल दो एक 1 किलोग्राम का पत्थर ले लिया, दोनों को मैंने छोड़ दिया, कौन सा नीचे आएगा पहले? हाँ, प्रोवाइडेड what is the condition? हाँ, so free fall is fall of an object due to gravity when there is no resistance, right? So there is no resistance due to air in this case. तो हम जब इसके इक्वेशन डिराइव करेंगे तो वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं फ्री फॉल. तो अब हमारे पास एक बिल्डिंग है, इज अ टावर. तो टावर से हम लोग
एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देंगे, रिलीज या ड्रॉप, इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0, हमने यहाँ पे इसको रिलीज कर दिया। सो आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि how much is the time taken by this object to reach the ground? What will be the final velocity of the object when it reaches ground? What will be the height of this tower in terms of velocity? Final velocity, of course. So there are a lot of questions that we have in mind. So I want answers from you. What will be T in terms of V or H and G? कैसे फाइंड क्या? ये इक्वेशंस है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बोर्ड पे, राइट हैंड साइड पे, ये क्या? S इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी जीरो, S इज H, A इज G, बराबर। तो मुझे मिल गया यहाँ से टी स्क्वायर इज 2h/g, मतलब मिल गया कि t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g, राइट। देन व्हाट इज velocity when it reaches ground? v square equal to u square, मतलब 0 प्लस 2a मतलब g, s मतलब h, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, ओके, राइट। तो अभी मैं t और v को कंपेयर भी कर सकता हूं, तो आई कैन राइट डाउन, ओके, आई कैन जस्ट एडजस्ट, आई कैन से t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g है, यस, तो मैं g से मल्टीप्लाई डिवाइड ही कर लेता हूँ, है ना। तो मुझे मिल गया t इज इक्वल टू अंडर ऑफ 2h/g क्या है, v, और ये क्या है नीचे, जी स्क्वायर मतलब जी। हाँ, वैसे ये करने की भी जरूरत नहीं थी, वैसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो है ना, ए जी, तो t इज इक्वल टू v बाई जी, वही इक्वेशन आ गया। तो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ हाइट अंडर रूट ऑफ 2h/g, इन टर्म्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी v बाई जी। तो जो आपको दिया होगा वो यूज करना पड़ेगा। फ्री फॉल, you cannot use it anywhere you want, it is for free fall। h कैसे निकालेंगे? h यहीं से मिल गया आपको, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g, राइट, ओके। तो यहाँ खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा काम स्टार्ट हुआ है, कैसे? I want to represent all this motion with the help of graph. So graph of distance, velocity and acceleration with respect to time, of distance, velocity and acceleration. And of course, I will first look at this graph with plotting time along x-axis. फिर बाद में मेरा मन हुआ तो मैं x-axis चेंज कर दूंगा, बट फिलहाल temporarily we are taking time here, and we are taking, let us say, distance here. We'll start with distance, s t. Batao how this graph will look like. Look here, we have equations, okay, we have equations here, s equal to u0 था, half at square, so you have a equation, tell me how it looks like. What is yx, what is equation of this, which is this curve, what is this curve called as? Parabola, parabola,
मैंने बताया भी था आपको, ऐसा बटरफ्लाई शेप निकाला था हमने। I told you, yes, I told you, if I am not wrong, I'll tell you. हाइपरबोला की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे बताऊंगा, बट वी डोंट नीड इट एनीवेज। ये एक्स वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन है। ये एक पैराबोला है फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये एक पैराबोला है सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, मान लो। आई डोंट नो, बट एनीवेज ठीक है, मान लो। ऐसा याद रखना, एक्स दिखता है कि ये एक्स है। व्हाट इज एक्स पावर 1? एक्स, वेरी गुड। तो मैं यहाँ कुछ नहीं है, मतलब मैं ऐसा इमेजिन करूंगा कि यहाँ 1 है, इमेजिन कर लिया ना। तो ये दो जो ग्राफ है, ये है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax पावर 1, और ये है वाई स्क्वेयर इक्वल टू -4ax पावर 1। तो ऐसा याद रखना, तो याद रहेगा, फिर नहीं भूलोगे, क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ होता है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसमें होता है कंफ्यूजन। तो पहले x ड्रॉ कर लो, मिल गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, वेरी गुड। अब ये भी पैराबोला है, बट ये पैराबोला फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है, और नीचे एक पैराबोला है, और ये पैराबोला थर्ड फोर्थ में है, राइट। अब ये आएगा आपका एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay, और ये आएगा एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -4ay, and all these four parabolas are vertex of these parabolas are at origin, करेक्ट, समझा यहाँ तक? अभी s कहाँ प्लॉट किया आपने? y एक्सिस पे। t कहाँ प्लॉट किया आपने? x एक्सिस पे। मतलब y is some constant, 4a बोलो, 10a बोलो, 20, क्या फर्क पड़ता है? कांस्टेंट, सम कांस्टेंट x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू y बाय सम कांस्टेंट, 1 अपॉन कांस्टेंट इज अगेन अ कांस्टेंट, बराबर ना? तो x स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू y, है ना? करेक्ट, राइट। तो ये ग्राफ ऐसा और ऐसा दिखना चाहिए, बट टाइम नेगेटिव होता है क्या? हाँ, तो फिर ये हो गया तुम्हारा ग्राफ, राइट। तो s इक्वल टू हाफ GT स्क्वेयर इज, हमको क्या करना था, हम फ्री फॉल पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे फ्री फॉल, और फ्री फॉल में ऐसा इक्वेशन आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1g/2t स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस और t स्क्वायर, ऐसा। तो हमको देखना है ग्राफ कैसे दिखता है, तो ये पैराबोला है, क्योंकि y एक्सिस पे s है, x एक्सिस पे टाइम है, तो ये पैराबोला है ऐसा, राइट। तो फ्री फॉल का ग्राफ है ये, तो भी देखते समझना चाहिए, अरे ये फ्री फॉल है, तो वो पता होगा, तो s इक्वल टू g/2t स्क्वायर याद आ जाएगा कि ओके आई कैन सॉल्व दिस, है ना? तो कर सकते हो ऐसा, ओके। तो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक ऑफ रिमेम्बरिंग, वो अच्छे से याद रखो, हो जाएगा। देन then you will have to plot time and b, and this is simple, this is a joke. why joke? देखो क्या था टाइम और v का रिलेशन, v इज इक्वल टू gt, v इज इक्वल टू gt, v मतलब y, t मतलब x, v इज इक्वल टू gt मतलब y इज इक्वल टू mx। c कहाँ है अपने पास, है क्या? अब दिस इज अ straight line passing through
ओरिजिन, हाँ तो ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो है इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ स्लोप एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, है ना, सिंपल, याद रहेगा, गुड। देन क्या रह गया अभी हमारा वो फालतू एकदम ग्राफ, सो आई जस्ट ड्रॉ एंड रिमूव इट बिकॉज इट्स रियली, आई मीन दिस इज नॉनसेंस। एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम, बताओ तो एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम का ग्राफ क्या है? फ्री फॉल है, ऑब्जेक्ट रिलीज कर दिया, यहाँ पे आ गया, व्हाट इज एक्सेलरेशन जी, यहाँ पे आ गया, व्हाट इज एक्सेलरेशन जी, जी मतलब इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस विथ वैल्यू जी। तो ये मैं नॉर्मली लेता नहीं हूँ बिकॉज इट्स बहुत सिंपल, करेक्ट, समझ आया तक, गुड। बाकी के जो इक्वेशंस है वो हम लोग इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, वी हैव गुड इनफ सफिशिएंट टाइम। तो मोशन इन 1D में दिस इज ऑल यू नीड, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगने वाला हमको। देन वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज मोशन इन 2D। मोशन इन 2D में देर आर टू पार्ट्स, ऑफ कोर्स मोशन इन 1D में रिलेटिव वेलोसिटीज का क्वेश्चन है, जैसे रिवर और बोट का प्रॉब्लम, वो एज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में ले लेता हूँ, तो आई डोंट टेक थियरी ऑफ इट। एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा सर्कुलर मोशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल भी एक्स वाई प्लेन में है और सर्कुलर मोशन भी एक्स वाई प्लेन में है। तो विल स्टार्ट विथ प्रोजेक्टाइल फर्स्ट। इसका टेस्ट करो। We'll start with projectile first and okay, so प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग तीन टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन सीखने वाले हैं। पहले को बोलते हैं ऑब्लिक या फिर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मतलब ऐसा सिंपल है, वेरी सिंपल थिंग, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, खत्म। तो यहां से स्टार्ट किया और कहीं तो गया वो, राइट, है ना। जो साइंस नहीं पढ़ते उनके लिए ये सोचेंगे ही नहीं, हम तो साइंस के स्टूडेंट है तो वी टू थिंक अबाउट एवरीथिंग। जैसे एवरीथिंग मतलब क्या? सबसे पहले व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया होगा कि वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, या तो फिर ओरिजिन से ए पॉइंट तक गया। और ओरिजिन क्यों बोल रहा हूं? जहां से मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया उसको मैं ओरिजिन ही मान लेता हूं बिकॉज आई सेट ओरिजिन देयर, राइट। तो अब क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन? लेट्स से इट्स मेक सम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, लेट्स से ये है u, ओके। देन द क्वेश्चन इज, क्या मैंने किसी भी एंगल पे इसको अगर थ्रो किया तो क्या वो हमेशा उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा? नहीं, हम ये रियल लाइफ में करते हैं, अगर हमको ज्यादा दूर फेंकना होता है तो हम कम एंगल पे फेंकते हैं, है ना, दिस इज व्हाट वी डू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या इसका वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा? वी डोंट नो, डू वी नो हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा? एज डायरेक्शन चेंज। एज
द पार्टिकल इज, बाय द वे, ये जो पाथ पार्टिकल ने कवर किया है, द वन इन द रेड, दैट इज कॉल्ड एज ट्राजेक्टरी. तो आई वांट टू नो if the velocity of the projectile remains the same at every point along its path. वैसे आंसर इज नो, लेकिन हमको थोड़ा और डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जब मैं बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूं, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब द ओनली फोर्स एक्टिंग हियर इज ग्रेविटेशनल फोर्स. बाय द वे, प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप पढ़ते हो तो 4 अजम्पशंस के अंडर पढ़ते हो, ये पता होना चाहिए. व्हाट आर दोस 4 अजम्पशंस? पहला, there is no resistance due to air, the only force acting is gravitational force. दूसरा, 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 the effect of earth's rotation is neglected, मतलब range of the projectile is small enough as compared to radius of earth. क्यों? ये radius of earth हो गया. तो अगर मैं शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल देख रहा हूं, है ना, तो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है फिक्स डिस्टेंस. अगर मैं लॉन्ग रेंज प्रोजेक्टाइल देखूंगा तो अर्थ भी रोटेट हो रहा है, मतलब मारना था इस्लामाबाद को, लग गया काबुल में. You have to take into consideration that. So when we study projectile motion, the range is less, very less compared to radius of earth. Third assumption, the maximum height of projectile is also very less compared to radius of earth. Maximum height h. क्यों? हाँ, तो ऊपर क्या, हैव यू स्टडीड ग्रेविटेशन? नहीं, ग्रेविटेशन नहीं हुआ आपका. क्या है? मतलब ऊपर जब जाएगा तो Tell me what happens to acceleration due to gravity as you move above the surface of earth. The acceleration due to gravity decreases, right? पर हम लोग ये मोशन सॉल्व करते वक्त क्या बोलते हैं? At every point the acceleration due to gravity on the projectile is minus g, मतलब g at least magnitude wise. g बोले तो मतलब क्या वैल्यू ले रहे हो? 9.8, मतलब कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हो, मतलब हाइट तो कम होगा तब कांस्टेंट होगा, ज्यादा हाइट कर दिया तो फिर g की वैल्यू. एग्जैक्टली. तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि नाउ यू विल अंडरस्टैंड. देखो अब क्या है कि लेट्स से इफ द प्रोजेक्टाइल इज एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग इट्स पाथ, है ना, अलग अलग पॉइंट पे है. तो एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस वी शुड थिंक, वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्या? होगा. क्यों होगा? अरे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है नहीं इस पे. हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है. तो अगर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज क्यों होगा? मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट. मतलब फिर आप बोलते हो ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं हम लोग पहले. व्हाट आई विल डू इज, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ओवर हियर ux, दिस इज uy. फिर ux at every point is the same. ux का मैग्नीट्यूड कहीं भी चेंज नहीं होगा, is the same everywhere. But मतलब vx final velocity is equal to initial velocity for x direction. बट y के केस में क्या हो रहा है? y के केस में ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे पुल करेगा, मतलब y का वेलोसिटी कम होते जाएगा. तो इट विल बी रिड्यूसिंग, कम होते गया और मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0. मतलब इस पर्टिकुलर b पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं. वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया 0,
फिर क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन टूवर्ड्स अर्थ, मतलब वेलोसिटी का y कंपोनेंट वापस बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और फाइनली वापस ग्राउंड पे आने के बाद they both have same value again but with y component reversed. अगर पहले y कंपोनेंट अगर u sin थीटा था, क्योंकि ये थीटा है तो ये u cos थीटा होगा, तो फाइनली ग्राउंड पे वापस आने के बाद ये माइनस u sin थीटा होगा और ये u cos थीटा ही रहेगा, बराबर. What is the change in velocity or momentum in this case? 2mu sin थीटा, क्योंकि cos थीटा चेंज नहीं हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन में गया ना, फाइनल माइनस इनिशियल तो गया, तो 2mu sin थीटा. This is how you solve, right? So as a physicist or student of physics, you must think along the trajectory. अच्छा, तो velocity change हो रहा है मतलब, और होगा, क्योंकि only force is gravitation which is vertically downwards, और horizontal direction में force ही नहीं है, force नहीं तो acceleration नहीं है, तो फिर ux, क्योंकि आप बोलते हो ना v equal to u plus at, फिर आप बोलते हो vx equal to ux plus axt. अभी ax है ही नहीं तो vx equal to ux क्या था, u cos थीटा था. तो हम लिखेंगे, इक्वेशन भी लिखेंगे, सारे इक्वेशन मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा, राइट. देन नेक्स्ट थिंग इज आई वुड लाइक टू नो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, बिकॉज दैट इज समथिंग यू कॉल्ड एज टाइम ऑफ एसेंट. ग्राउंड से मैक्सिमम तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, यूज थीटा जी, विल सी दैट. फिर अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम हाइट से नीचे आने तक कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ डिसेंट, राइट. मतलब दोनों इक्वल है और होने भी चाहिए, क्योंकि पहले भी ग्रेविटी थी अभी भी ग्रेविटी है, देयर इज नो चेंज इन ग्रेविटी, ओके. एंड राइट, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ h and on what parameters does it depend? Then ये जो horizontal distance होता है that is called as range. So what is the range in terms of known parameters like theta, like u? ये पता होना चाहिए, right? This is, as a student of science, you should think of this. Important. What is the equation of trajectory? वो हम देखेंगे, जैसे parabolic path, लेकिन पैराबोला कौन सा, फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला कि x इक्वल टू वाई स्क्वायर वाला, हम देखेंगे. We'll see everything. Starting from basics, I don't want you to remember any equation for the time being, of course, right. If I ask you, मुझे सबसे पहले equation of trajectory निकाल के दो, मतलब relation between y and x. How do you find this relation? इजी है, आप बोलोगे s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. ये ही क्यों यूज करना है, दो रीजन है. एक ही रीजन बोल सकते हो, रिलेशन किस में चाहिए, y और x में. y भी डिस्टेंस x भी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का तो यूज करना ही पड़ेगा, राइट. मैं अगर इसको x कंपोनेंट पे अप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है ये इक्वेशन, और मुझे ऑलरेडी पता है ax इज 0 because there is no force in horizontal direction. मुझे पता है ux is, what is ux, u cos theta, और sx को मैं लिख देता हूं फिलहाल x because distance in x direction. तो x is equal to u cos theta into t. मतलब मुझे यहाँ पे कम से कम
पार्टिकल सपोज किसी पोजीशन पे है, सी पोजीशन पे, उस केस में इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन इज x, with respect to origin x distance है इसका, right? So what I am saying is this, what I am saying is at any instant of time the particle is, let us say, at position C, और पोजीशन C पे जब था तो उस केस में इसका x कोऑर्डिनेट है x, क्योंकि मैं तो कभी भी पूछ सकता हूँ ना, अभी बॉल जा रहा है, मैंने बोला व्हाट इज x कंपोनेंट ऑफ दिस, और कितना टाइम हुआ उसको वहां तक पहुंचने में विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। ये समझ में आ जाता है ना, यहाँ से प्रोजेक्ट किया मैंने, यहाँ तक आया था, मैंने बोला ये 10 मीटर है, so I can ask what is the time to reach that particular point in terms of angle, in terms of distance along the ground। तो t मिल गया हमको, क्या है t, x by u cos थीटा। हमारा टारगेट क्या था, y और x का इक्वेशन, राइट, करेक्ट। तो अब मैं यही फॉर्मूला का y कंपोनेंट देख लेता हूं, sy is y, uy is u sin थीटा t माइनस g by 2, क्योंकि ay क्या है, माइनस g, बिकॉज ऑब्जेक्ट गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्सेस डाउनवर्ड्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन, माइनस g, बराबर ना, गुड, करेक्ट। क्या बचा, टी स्क्वायर, पर ये तो y और t का इक्वेशन है, मुझे क्या चाहिए था, y और x का, इसलिए मैंने t को इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, तो u sin थीटा x अपॉन u cos थीटा माइनस g बाई 2 x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u cancel। So what we will obtain is, हमको मिल जाएगा y इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस 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 g बाई 2 एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ओके, इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। हाउ डज, कैसे बोल सकते हो कि ये पैराबोला है, कैसे बोल सकते हैं पैराबोला है, कौन सा पैराबोला है, कौन से क्वाड्रेंट वाला पैराबोला है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, वन फोर्थ, कौन सा पैराबोला है ये, मतलब ऐसा, फर्स्ट सेकंड बोल रहे हो, मतलब ऐसा नहीं, फिर मतलब ऐसा, राइट। इसका इक्वेशन याद है आपको, y इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर, बराबर। अभी कंपेयर कर लो, आ गया, लेकिन देयर वाज अ थिंग दैट वी मिस्ड, हमने पहले तो इसको ऊपर, अरे साथ में क्यों आ रहा है, हमने पहले इसको ऊपर शिफ्ट किया वर्टेक्स को, मतलब देयर हैज टू बी सम प्लस टर्म, सम प्लस टर्म, राइट। दूसरा, हमने इसको सिर्फ ऊपर नहीं शिफ्ट किया था, हमने इसको एक्स में भी पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट किया था, इफ यू रिमेंबर, इफ यू सी, मतलब ऐसा ही था ना ट्रेजेक्टरी। हाँ, तो फिर ये जो प्लस टर्म में एक्स भी तो आना चाहिए, नेगेटिव में प्रोजेक्ट करता तो माइनस एक्स आएगा, वैसे वो tan थीटा में इंक्लूड हो जाता है ना, क्योंकि अगर मैंने ऐसा प्रोजेक्ट किया होता तो फिर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है, मतलब एंगल ऑब्ट्यूस है,
तो tan थीटा नेगेटिव वैसे भी हो गया, राइट? तो ये हो गया पैराबोलिक पाथ, करेक्ट? तो are you confident enough that you will be able to derive this without memorizing? orally होगा ये कैसे? x is equal to u cos theta into t, t is x upon u cos theta, y is equal to u sin theta t minus gt square, और जहां जहां t है वहां वहां x upon u cos theta डालना है, खत्म. वेरी गुड. ओके, राइट. Then we can actually write this equation in an easier way in terms of range of projectile, but for that आपको range का equation याद होना चाहिए. Do you remember range का equation? वो बाद में derive करेंगे हम लोग, but अभी याद है क्या? क्योंकि गलत तरीके से याद रखा गया इसलिए याद नहीं रहता. बताऊंगा सही तरीका क्या है. u square sin 2 theta by g. मैं इसलिए बोलता हूँ कि you remember it in a wrong way. That's why you don't remember equations at all. I'll tell you what is right way of remembering. Even y you will remember in a right way now onwards. So right way of remembering, oops, y. ये क्या था? Sin upon cos, है ना? U sin upon U cos. हाँ, मतलब ये था uy ux x minus gx square by 2 ux square. ऐसा भी याद रख सकते हो if you want. नहीं तो आपकी इच्छा. वैसे range is 2ux uy by g. This is the right way of remembering range. कैसे? 2 ux is u cos, uy is u sin upon g, u into is u square, 2 sin theta into cos theta by g, 2 sin theta cos theta is sin 2 theta by g. तो 2ux uy by g तो बहुत सिंपल है. तो अभी फिलहाल ठीक है. फिलहाल you remember range as u square. If you want sin 2 theta by g, if you want 2 sin theta cos theta by g, everything is fine. तो तुमको सिर्फ tan theta x को कॉमन निकालना है. 1 minus g by 2 x square upon u square cos square theta बराबर. अब हमारे पास सेकेंड टर्म में x tan theta तो था नहीं, हमने जबरदस्ती का कॉमन निकाला है. जबरदस्ती का कॉमन निकालना है मतलब मुझे एडजस्टमेंट्स तो करने पड़ेंगे. फिर एक x भी जाएगा. फिर नीचे ये tan जो है, so this tan theta x 1 minus g by 2 u square cos square थीटा, और ऊपर x रहेगा, वो x था. tan थीटा को मैं लिखूंगा sin बाय cos. cos cos होगा कैंसल, ये x है बाय द वे ऊपर. फिर उसके बाद आपको मिलेगा tan थीटा इंटू x 1 माइनस, अभी देखो नीचे आ गया 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब 2 साइन 2 थीटा और साथ में u स्क्वायर. तो 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ऊपर g है उसको नीचे लाया और ऊपर एक x था, मतलब tan थीटा 1 माइनस x बाय r with an extra x here. Correct? So this is the way of remembering. One more way of remembering. So y is equal to x tan theta 1 minus x by r. Right. Now, I want to know what is the equation of displacement at any point along the path. मतलब ऐसा है कि ये प्रोजेक्टाइल है. प्रोजेक्टाइल
ये x और y कोऑर्डिनेट्स है। एट एनी पॉइंट अलोंग द पाथ मतलब सपोज ये एक p पॉइंट पे था, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो मुझे अगर मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, this one in the black is displacement vector. I want to find out what is r bar at any instant of time. What is displacement vector at any instant of time? बताओ। मैं बार बार बोलता हूँ वेक्टर्स वेक्टर्स और वेक्टर्स, कितनी बार मैंने बोला है कि वेक्टर्स they are really important, so you need to understand why. What was r bar? x2 minus x1 I cap, लेकिन x1 y1 तो ओरिजिन है, x2 y2 को हमने क्या बोला है? xy। मतलब क्या बेसिकली क्या है? बेसिकली जब p पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल होगा तो उसके कोई xy कोऑर्डिनेट्स होंगे ना। हाँ, तो फिर x I कैप प्लस y, अभी अभी आपने x को लिखा था ux इंटू टी, है ना, बराबर आई कैप प्लस इसको लिखा था आपने यू वाई इंटू टी माइनस जी टी स्क्वेयर जे कैप, बराबर। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ थीटा ही चाहिए तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर। मैं यहाँ पे टाइम का स्क्वायर करना भूल गया, तो कर लेते हैं। करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। इसको तुम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करो, आपके ऊपर है। फिर यहाँ पे माइनस बी ब्रैकेट्स को लगाना पड़ेगा। बट द मेन आइडिया वाज दैट यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग। फिर क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? फिर यू एक्स टी, यू कॉन्सिडर टी पहले फाइंड कर लेंगे, मतलब पहले x हम लोग फाइंड कर लेंगे, फिर y फाइंड कर लेंगे। अगर x और y तुमने इंडिविजुअली फाइंड कर ही लिया है तो फिर मैं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने x की जगह पे क्या लिखा? यू एक्स टी। y की जगह पे क्या लिखा? यू वाई टी माइनस जी टी स्क्वायर। और वैसे बाय द वे ये जी बाई टू है यहाँ पे, है ना। एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर हाफ। तो मैं हाफ नहीं लिखा, लिख देते हैं। और पर जरूरत कॉम्प्लिकेशन करने की नहीं है, सिंप्लीफिकेशन करने की है। तो पहले तो हम x निकाल लो, मतलब पहले ये टर्म फाइंड कर लो, ये टर्म फाइंड कर लो, फिर उसको वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो। मतलब कंपोनेंट्स में हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर? अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। वैसा भी चलेगा, राइट? क्लियर। नाउ आई वांट टू नो व्हाट इज दिस एंगल phi a projectile is making at any instant of time with respect to origin. Remember, theta is angle of projection, phi is और alpha phi जो भी यूज करोगे is direction और angle at any instant of time। तो कैसे करोगे? किसी भी एक वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? साइन कॉस टैन, क्या यूज करते हैं? भूल गए? मैं नहीं, मैंने आपको बताया था, हम लोग जब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर सीख रहे थे, ये रिजल्टेंट वेक्टर था, बराबर। रिजल्टेंट ए और बी वेक्टर में एंगल था थीटा, ये एंगल को मैंने बोला था अल्फा। नहीं, मैं पूछ रहा हूं डायरेक्शन, आप मतलब डायरेक्शन मतलब एंगल, ये हम हमेशा tan अल्फा ही करते हैं ना। क्यों tan अल्फा करते हैं भाई? तभी किसी भी एक वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए tan ही क्यों होता है? व्हाई नॉट साइन, व्हाई नॉट कॉस? ये एक वेक्टर है आर बार,
ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मतलब ये y कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट है. व्हाट इफ आई टेक साइन थीटा? एक कंपोनेंट मुझे फॉर्मूला बताओ. साइन थीटा मतलब अपोजिट अपन हाइपोटेनस, मतलब y, मतलब साइन में सिर्फ y कंपोनेंट आया. कॉस में क्या आएगा? हाँ, तो tan में क्या आएगा? हाँ, तो डायरेक्शन कैसे पता लगता है? दोनों कंपोनेंट आने चाहिए. हाँ, तो फिर किसी भी वेक्टर में कुछ भी हो, वेलोसिटी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, कुछ भी हो, अगर आपको बोला है डायरेक्शन बताओ, तो टेक tan ऑफ फाई. ये आपका वेलोसिटी या फिर बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट था, ये आपका x कंपोनेंट था, तो tan फाई क्या होगा? y बाई एक्स. हाँ, बट y क्या है? यू आई टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू, है ना? तो यू वाई क्या है? यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू, और ये क्या है? यू कॉस थीटा टी. हाँ, तो फिर मुझे अगर फाई चाहिए तो मैं इसका tan इनवर्स ले लूंगा, है ना? tan phi इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू अपॉन यू कॉस थीटा टी. तो फाई एंगल इज tan इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट, right? So this is how you find out direction at any instant of time. Okay, right. So